So yesterday we have started with unit number 3, that is knowledge and reasoning. In that also, some of the things are there which we have discussed related to. I will just highlight what all the things we have discussed. So we will have a connectivity between what we have done yesterday and what we'll be doing today. Okay. So yesterday I started with the syllabus, and the syllabus you are knowing which is there on your screen. Uh, Knowledge and reasoning, building a knowledge base, and propositional logic, first order logic, etc. So most of the half part is completed. Half part will be completing today in relation with what we have done. Yesterday, these references books were shown to you. Another thing we have explained is related to and operator, or operator, implies, equivalent, and not. Right? This thing. Right? That is uh, how to use and operator. That is connectivities, or operator implies and equivalent and not, etc. So a simple example was given. If it is hot, for example, it is written as it is hot, Q is humid, R means it is rainy. So such way we have framed one question, and we have talked about what is called as semantics. In that also two important points we have discussed, that is semantics means what? It is interpretation. And second is we have talked about the truth value regarding these 5 different types of connectors. Yes. Then next we have talked about KB, that is knowledge base. So as we are talking about artificial intelligence, we are talking about knowledge base means what? Whatever the previous knowledge we are having, that we are trying to implement in terms of logic, and then we will be implementing in order to give the intelligence to the particular system, or you can say particular robot or particular sensor, so that it will work accordingly. That is only the case. So valid statement, again it is called as a tautology. तो मैंने आपको दिखाया था कि if all the statements, if the outputs of all the statements which we have discussed with the help of connectors, if it is coming as true everywhere, then it is called as tautology. And if it is coming as false everywhere false, so automatically it is called as contradiction. Getting? So two statement you need to understand. One is called as tautology, means all the statements are true, and whenever all the statements are false, then it is called as contradiction. Okay? Whether my voice is clear, everything is clear. Whether you are able to see the screen, anyone can reply properly so that I can go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. So tautology मैंने बताया कि आपको सभी ट्रू आने चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आपका सभी फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, कल ही मैंने बताया. नेक्स्ट इज मैंने ट्रूथ टेबल के बारे में भी आपको चारों के चारों जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज हाउ पी एंड क्यू, मतलब जैसे मैंने टी को बोला है 1 एंड एफ को बोला है 0, तो 1 into 1 is will become 1, automatically 2 into will become 2, 2 into false will become false, because 1 into 0 will become 0, so false रहेगा. ऐसे करके मैंने लॉजिक बताया. So and or and if then का मैंने स्टेटमेंट आपको बोला. If the first statement, if it is true, for example here P is true, then and then only we'll be seeing the second statement, that is true or false. If first statement is true, second statement is true, you directly put it as true. If first statement is true, second statement is false, you put it as false. But if the first statement itself is false, do not think about anything, directly put it as true. Getting? The only change is that if then मतलब क्या होता है, only the first statement, that is P, you need to check whether it is true, and then we need to see whether the second statement is true. अगर second statement अगर true ही रहा, then it is only true, otherwise वो false हो जाएगा. Other things, अगर वो false ही है पहला statement, automatically we can say the output will be for if then statement will be true. So with the help of एक example के तौर पे मैंने बताया था, if it is a Sunday, P is it is Sunday and Q is store is post. ऐसे करके मैंने आपको इक्वेशन बताया था रिगार्डिंग इफ देन yesterday. नॉट के बारे में हम बात करते हैं. निगेशिएशन मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ट्रू का फॉल्स करना, फॉल्स का ट्रू करना, दैट इज negation. So these are the 5 connectors which were there on your screen, and we have seen a complex sentence also. That is taking out this small and or an operator, it is very easy. But when you talk about the complex things, for example, here if you want to find out such outputs at a time, because these type of logics are required whenever you are going for any designing of any video game, or in terms of any video editing, we require this type of logic. What should be the next step, or what should be the output?
For that, these logics or complex sentences has to be framed. So we should have when the statement or whether to act or whether not to act. This can be the only thing which the computer will do. Whether yes or no, or whether it is true or false, whether it is 1 or 0. This only will be done by computer, right? So the logic has to be framed inside because computer doesn't have any intelligence with it. We need to provide this intelligence by giving this logic statements. हमने ये लॉजिक मैंने आपको बताया था कैसे निकाला है मैंने ये yesterday on. Okay. So by using model statements also we have discussed in the frame or in the terms of Venn diagram. That is how P और Q is written, मतलब दोनों का combination रहेगा. It is shaded portion. And P and Q मतलब उनका intersection रहेगा. P and Q का अगर आपको P if then का use करना है, automatically other than P whatever are the statements it is considered as false. So automatically we are considering it is considered as true. So we have seen that only the part of P it is remaining vacant, all things are being shaded. Next is if P is equivalent to Q, means if P is true, Q is true. अगर दोनों भी true है, then you put it as true. अगर P false है, true भी false है, then also you put it as true. मतलब both P and Q should be equal, then and then your output will be true. Otherwise the statement will be false. Okay. So this thing we have done yesterday. Again, what is the inference logic? मैंने आपको बताया how conclusions can be taken out. अगर मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए या फिर दोनों वेरिएबल चाहिए तो वो कंक्लूजन कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग Borders-Bonus मेथड. तो ये मैंने आपको एक ट्रूथ टेबल करके आपको बताया था यस्टरडे. प्रूविंग थिंग्स प्रूफ और हॉर्न स्टेटमेंट बारे में बताया था मैंने. हॉर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ओनली वन connectors is being used between many sentences, that is P1 and P2 and P3 and so on. It is written as Pn is if then is then Q ऐसा करके ऑप्शन है. Automatically such statements are called as on statements, है ना. सभी कंडीशंस एंड में है या फिर सभी कंडीशंस निगेशिएशन में है या फिर सभी कंडीशंस और में है, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से such statements are called as on clauses, right? Because only single operator is being used throughout, और if then condition यहाँ पे हम यूज करते हैं. Okay. So this thing we have discussed yesterday. Many of the things we have seen. और एक मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था रिगार्डिंग Hunt the Wampus. Hunt the Wampus का मतलब क्या होता है? ये गेम है, ये चाइनीज गेम है. इट वाज डेवलप्ड अर्लियर, दैट इज 1973 में ये डेवलप हुआ था, है ना. यहाँ पे आप एक स्क्वायर बॉक्स में देख सकते हो कि W मैंने बताया था. दिस W इज नथिंग बट वेम्पस. वेम्पस का मतलब क्या होता है? वेम्पस का मतलब यहाँ पे ड्रैगन यू कैन से, और यू कैन से राक्षस यहाँ पे बोल सकते हो, एनीथिंग. मतलब whenever you put the value or whenever an opponent is going inside this box, automatically the game will be over. That is the meaning. So where he need to go, 1.2 में जाना है या फिर 1.2.2 में जाना है, किस बॉक्स में हमें वो जो आपका whenever the player जो हम खेल रहे हैं, that where in which box it should be so that it will become safe, उसका एक आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा. Because yesterday I have talked about that we are not talking about how to play the game, getting, we are talking about how to develop the game. Because you are developing the game, तो हम उसका बैकग्राउंड निकाल रहे हैं. गेटिंग, गेम खेलना ये तो थर्ड पार्टी का काम हो गया है, मतलब जो पैसे दे के खरीद करके वो करेंगे. बट वी आर डेवलपिंग अ गेम एज अ ओन. सो ऐसे करके बॉक्सेस आपको समझ में आने चाहिए कि 1.2 में वी है तो ओके, ऐसे करके. तो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप लॉजिक दिए हैं. W11, W12, निगेशिएशन ऑफ W11 मतलब पहला, अगेन एंड, अगेन निगेशिएशन ऑफ W12. ऐसे करके आप स्टेप्स लिख सकते हो कि अगर ये नेगेटिव करके अगर ट्रू आ गया वैल्यू, देन देयर इज नो इशू, देयर इज इशू फॉर द प्रॉब्लम. अगर ये फॉल्स आ गया, मींस व्हाट, इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज कमिंग एज फॉल्स, देन यू कैन टेल दैट देयर इज गेम ओवर करके आपका कमांड दे सकते हो. जैसे कि यहाँ पे 1-3 का मतलब है, ये 1-3 है ना, W1 मतलब यहाँ पे ड्रैगन है. That dragon is killing. We are moving into one or the another box. यहाँ लेके हम जा रहे हैं. So automatically we should understand as we are moving from one box to another, this Wampus is also moving from one box to the another. ये box जाता है and it is trying to follow the player, right? So when the system has to be W12, यहाँ पे देख सकते हो. So it should not be game over like that. ऐसे करके हम निकाल सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में मैंने आपको बताया 4 अलग तरीके के फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स होते हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, सेकंड इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, रिलेशंस एंड फंक्शंस. अभी व्हेनेवर, नाउ हियर यहाँ तक तो हम आगे थे. नाउ वी विल लिटिल बिट गो अहेड.
I think many of the students have joined. Just let us see how many students have joined. Yes, many students have joined. So we can start with the today's thing, because I have discussed whatever we have done yesterday, right? So today we are discussing about the next point other than first order logic. First order के logic के आगे connectors हम आगे देखने वाले हैं कि इससे भी और आगे क्या होता है. When you develop a game, when you go for artificial intelligence, developing a software, at that time what kind of logic is are required, and for that what type of relations are required, वो आज हम देखेंगे. तो ध्यान से देखो, बहुत interesting है. And if you understand all these things and if you try to implement, it becomes very easy. whenever मैंने आपको कल ही बताया कि you one person can be a industry. आप खुद का इंडस्ट्री खोल सकते हो by using having only one laptop and yourself. That's all. You can develop your own game, you can develop your own movie at the home itself. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इट कैन बी स्टूडेंट, इट कैन बी, यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्टूडेंट्स, लेक्चर्स, कंपनीज का. इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स. मतलब whenever you are talking in terms of computer language, now objects का मतलब यहाँ पे आएगा students, lecturers या फिर companies, मतलब static things. These are called as objects. Relation का मतलब क्या हो गया? Brother of, bigger than, मतलब one quantity is being related with the another thing. Either the relation can be in between people, मतलब mother है, father है, grandfather है, grandmother है, that can be one kind of relation. But other relations can be छोटा है, बड़ा है, bigger, smaller, greater. This can be also a relation. Or whether the thing is outside house or inside house, part of this one or this is that of color, मतलब ये green color है, white color है. This kind of things, relations between two objects. So this can be seen. Properties का मतलब क्या हो गया? How the thing is looking like. Whether मतलब properties का मतलब यहाँ पे हो गया color के और पे distinction, otherwise shape के ऊपर distinction, large and small के ऊपर distinction. Getting comparison नहीं यहाँ पे. Whether the particular object is color, कौन सा है, blue है, white है, etc. या फिर what is the shape, whether it is square, oval, etc. Even है, मतलब क्या है? How many quantities are there? मतलब हमारे पास घर में टीवी है, तो एक टीवी है, तो it can be odd number. अगर दो टीवी है, it would be even number, like that. मतलब सेम क्वांटिटी के हमें देखना है, सभी सेम क्वांटिटीज. वी आर टॉकिंग अबाउट सेम ऑब्जेक्ट्स, अगर वो लार्ज है या फिर स्मॉल. सिमिलरली फंक्शंस का मतलब होता है फादर ऑफ, बेस्ट फ्रेंड ऑफ, सेकेंड हाफ, वन एंड मोर देन. तो फंक्शन का मतलब होता है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को रिलेट करना. गेटिंग? फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल. और यू कैन हैव अ बिगर सेट. जैसे मैंने वेन डायग्राम आपको बताया था, वेन डायग्राम में क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसके अंदर दो दो सेट्स होते हैं, ए एंड बी. सो यूनिवर्सल सेट कैन बी कॉल्ड एज अ फंक्शन एंड ए कैन बी कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल. गेटिंग? इसका मतलब ये होता है. नाउ इट विल बी वेरी क्लियर व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल प्रोग्रामिंग और एक्चुअल whenever you are developing the logic, है ना. ये आप जब जाओगे ना, ऑटोमेटिकली मैं आगे के स्लाइड करता हूँ, you will understand what I am trying to say. ठीक है? जैसे कांस्टेंट सिंबल्स हो गए, मेरी, थ्री, ग्रीन, ये कांस्टेंट हो गए. फंक्शन सिंबल्स, फादर ऑफ, मेरी, या फिर ऐसे है. प्रेडिक्टिव सिंबल्स मतलब ग्रेटर 5 या 3 होगा, ग्रीन ग्रास है. ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है. बट एक्चुअली आई वांटेड टू टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज, now up till now we were talking about connectives, right? Whether and है ऑपरेटर और नेगेशिएशन, if then या फिर इक्विवेलेंट, ऐसे करके हम कनेक्टिव्स देखते थे. बट नाउ वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड यूजिंग दैट कनेक्टिव्स, मतलब एंड और if then and इक्विलाइजर, जो भी आपके क्वांटिटीज हैं, वी नाउ हैव टू अप्लाई क्वांटिफाइजर्स. तो दो तरीके के क्वांटिफाइजर्स होते हैं. एक का नाम होता है यूनिवर्सल, जो ऐसे दिया जाता है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो. whenever you write down the notation, एग्जाम में भी आ सकता है. whenever what is this notation, that is उल्टा ए करके लिखा है ना. ए का मतलब उल्टा ए लिखा है, एक्स और ए ऑफ एक्स, मतलब एक ही मीनिंग है. आइदर यू राइट ए ऑफ एक्स या फिर in the reverse order of x, it is nothing but universal. and if you go for extension, मतलब उल्टा ई लिखो या फिर सीधा ई लिखो, one and the same meaning. तो आप ध्यान में रखो, if you write capital A in front of small x, इसका मतलब सीधा मतलब ये हो गया, whatever are the quantities of values of x, जो x के values हैं उसके सभी values इसमें covered. getting? whatever are the possible values of that small x, that complete is being covered by that set. इसलिए उसको यूनिवर्सल किया जाता है, यूनिवर्सल बोलते हैं. समझ में आ रहा है आपको? यूनिवर्सल का यहाँ पे मतलब सीधा सीधा है
whatever quantities ax से generate होती है, all the values are being included in this function. Getting? So it's a universal. Second का क्या होता है? एक्सटेंशियल. एक्सटेंशियल का मतलब सीधा ये होता है, उसका थोड़ा सा चेंज होता है एक्सटेंशियल में कि ई ऑफ एक्स या फिर रिवर्स ऑर्डर ऑफ ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि सम पार्ट और सम वैल्यूज ऑफ एक्स आर ओनली इंक्लूडेड इन द एक्स. राइट? पहले इसमें क्या था? ऑल द वैल्यूज. अंडरस्टैंड? whenever it is universal, all the values, and whenever you are talking about extension, some values are only included. ठीक? तो ये इसको लेके और पिछले वाले जो कनेक्टिव्स हमें हैं तो उसको लेके हम आगे स्टेटमेंट बनाएंगे. वेदर इट इज क्लियर ना, क्योंकि मैं आगे जाना चाहता हूँ. यूनिवर्सल एक्सटेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो गया. एनी ऑफ कैन रिप्लाई प्लीज. एनीवन कैन, स्टूडेंट कैन रिप्लाई वेदर इट इज ओके. यस, whether my voice and everything is clear. Hello, am I audible clearly? Yes or no? Yes sir. Yes. Okay, good. ठीक है, तो आगे चले जाते हैं. नाउ मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशियल एज वेल एज यूनिवर्सल. तो उसमें भी अभी आगे चले जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑटोमिक सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ऑटोमिक सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस which are either true or false and using only one connectors, है ना, उसको बोलते हैं एटॉमिक. मतलब सिंगल सेंटेंस, सिंगल ए एंड बी और ए और बी, ए निगेशिएशन ऑफ बी, ऐसे करके उसको बोलते हैं ऑटोमिक सेंटेंस, सिंगल स्टेटमेंट. एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एटॉमिक सेंटेंसेस. मतलब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर हमने क्लब कर दिया तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. एंड क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं मैंने अभी बताया आपको, दैट इज universal and that is A, that is extension. Getting? So these things will be now studying as a thing. Now universal quantification. तो मैंने आपको बताया universal of x of p of x, इसका मतलब क्या हो गया? p holds all values of x in the domain associated with that variable. मैंने यही चीज आपको बताई कि whenever we write universal of p or universal of x means what? This p value or p function will hold all the values of x and it can be written as. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल भी दिया है, यूनिवर्सल ऑफ डॉल्फिन ऑफ एक्स आर मैमल्स. मतलब जितने भी डॉल्फिन हैं, है ना, और यू कैन टॉक इट इन अदर वर्ड्स, जितने भी डॉल्फिन हमारे दुनिया में हैं दे आर मैमल्स. दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर चाइल्ड, है ना. मतलब yes. Okay, I got disconnected. No problem. Let us again, I will share my screen with you. Okay, the screen is being shared now. So I was talking about these things. That is universal quantification, essential quantification. तो मैंने आपको बताया कि all the this one, all the universal quantification मतलब all dolphins are called as mammals. या फिर another thing is existence or it can say extensial quantification. इसका मतलब क्या हो गया? Some part of px, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है that p holds for some value of x in the domain of associated with that variable. जैसे कि some mammals and lay eggs, ऐसे करके दिया है. Means what? X, that is
एक्सटेंशियल मतलब सम पार्ट ऑफ मैमल्स एंड लेज एग्स ऑफ एग्स, ऐसा करके उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया है कि whenever you talk about the world there are two things, one is some part they are mammals and some part which are given as like eggs, getting, तो इसका मतलब एंड करके दिया है, इन दोनों का अगर बना दिया है तो ऑटोमेटिकली वी विल बी गेटिंग एन आंसर। तो अगर मैमल्स हैं तो सीधी सी बात है कि मैमल्स मतलब दे विल गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड डायरेक्टली, एंड ले एग्स का मतलब होता है दे आर नॉट मैमल्स। सो व्हेन यू ट्राई टू टेक द इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं रहेगा कि दे विल गिव लेग्स ले एग्स आल्सो एंड दे विल बी गिविंग डायरेक्टली बर्थ आल्सो, ऐसा कोई अभी तक वी डू नॉट नो दैट feature that it lays eggs also and as well as give direct birth to the child also, right? So if you try to find out the, you can say, intersection between these two, because यहाँ पे and operator use किया है, देख सकते हो आप, between the two things यहाँ पे and operator use किया है, means what, this is what intersection of those things, mammals and eggs, so automatically it will be you can say it will be zero, nothing will be there inside this. So we are able to permit to make statement about same objects without naming it. आगे चले जाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स आर ऑफन यूज्ड विद इंप्लाइज टू फॉर्म रूल्स। एग्जांपल, जैसे मैंने आपके स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि यूनिवर्सल ऑफ स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, इसका सीधा मतलब क्या होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, इसका ये मतलब हो गया, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज यूनिवर्सल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे आगे दिया है यूनिवर्सल ऑफ स्टूडेंट ऑफ एक्स and smart x means what, everyone in the world is a student, ये तो बराबर है by the first statement, any everyone in the world is a student, ये बराबर है, लेकिन वो smart है या नहीं and is smart ऐसे करके दिया, क्योंकि वो smart है या नहीं है वो नहीं बताया, but everyone in the world is a student, yes it is written by the first statement and is smart। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको line by line, because the meaning is whenever you make such statement, we are going for complex statements, है ना, whenever you write down the rule book or you write down the logic for any of the program or any of the video game or any of the you can say animated films like that, at that time the first of all you need to write down the statements, मतलब एक story जैसा आपको लिखना पड़ता है कि this is done, this is done, this is done, then you have to apply the logic, and उस logic को हमें क्या करना पड़ता है, using our connectors, we need to write down that connectors, है ना, वो connectors, and then we need to fed to the computer। समझ में आ रहा है? First of all you need to write down the story, then with the help of story you need to go for the logic which is possible, and from the logic we are using the connectors जो हमारे पास है अभी, and from the connectors we are going to the we are feeding this information to the computer, so computer will act, बराबर है ना। फिल्म की शुरुआत कैसी होती है, एनी फिल्म अगर आपको एनी फिल्म इफ यू वांट टू प्रिपेयर, पहले तो उसका स्क्रिप्ट राइट तैयार होना चाहिए, एनी ऑफ द फिल्म विच इज सैंक्शन उसका स्क्रिप्ट राइटर आपके पास तैयार होना चाहिए, उसके बाद उसके डायलॉग्स आते हैं, डायलॉग के बाद गाने आते हैं, उसके बाद फिर चूजिंग ऑफ द रोल ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड ऑल द सफिशिएंट, एंड यू हैव टू चूज द लोकेशन, मतलब दिस इज द लॉजिक, एंड देन कम्स द स्क्रीनिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आगे की चीजें आती हैं, मतलब देयर इज अ सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया हैज टू बी कमिंग इनटू माइंड, इसीलिए उसको नॉलेज बोलते हैं, या फिर यू कैन से सिग्निफिकेंस, राइट, और यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड। तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊँ तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ये यू कैन से एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, मतलब यहाँ पे सम स्टूडेंट है ना, दीज आर द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एंड दिया है, स्मार्ट दिया है, ठीक है, सो देयर इज अ स्टूडेंट हु इज स्मार्ट, मतलब वी आर टेलिंग ओनली वन स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है या फिर क्वांटिफिकेशन यूज किया है, एक्सटेंशन, इसलिए ओनली वन स्टूडेंट हु इज स्मार्ट, ऐसे करके आंसर। Getting, now we are using quantifiers in terms of the you can say the connectors we are having। तो आगे जाके अगर मैं ऐसे करूँ तो कॉमन मिस्टेक इज टू रिप्रेजेंट इंग्लिश सेंटेंस एज द FOL सेंटेंस, मतलब हम क्या करते हैं, we write directly the English statement and try to convert into this connectors, whether it is possible, नहीं, understand, writing the FOL मतलब first order logic is different than writing the statement in terms of English, क्योंकि आपको लग रहा होगा there is a student who is smart, this is English, yes it is exactly true, this is an English statement, but this is not the English whatever we are talking about,
गेटिंग? जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं या फिर जैसे हम लिखते हैं, that English is not called as the first order logic. Here the logic is what we need to use the connectors and then frame the statements. Getting? So that is the change here. You should understand. है ना? यहाँ पे भी आ गए हम, जैसे करके आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है, राइट? गेटिंग? सो क्वांटिफाइजर स्कोप के उधर आपको देख सकते हो आप, या फिर यू कैन से एसेंशियल के तौर पे ऊपर आप देख सकते हो, लाइक दिस. एंड हियर वी आर यूजिंग द व्हाट साइन हियर, इक्वल टू, और यू कैन से इक्विवेलेंट सिग्नल. मतलब क्या होता है कि इफ यू आर एबल टू चेंज, पहला जो अगर है, इफ आई वांट टू चेंज, अगर x का पहले वैल्यू ले लिया, उसके बाद y का वैल्यू ले लिया इन टर्म्स ऑफ xy, इफ आई अप्लाई एंड इफ यू रिवर्स द ऑर्डर आल्सो, इट डजंट हैव एनी इफेक्ट. गेटिंग? इफ यू टेक द, मतलब सब x के वैल्यू ले लो, उसके बाद सब y के वैल्यू ले लो, और y के वैल्यू ले लो पहले, या फिर x के वैल्यू ले लो सभी, तो इट डजंट हैव एनी इफेक्ट. इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, यूनिवर्सल ऑफ x ऑफ यूनिवर्सल ऑफ y of p of x is nothing but equal to universal of y and into universal है. उल्टा किया है देखो यहाँ पे, and it is p of x. इसका मतलब है हम रिवर्स ऑर्डर में भी इसको लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, 2.3 is nothing but equal to 3.2, या फिर 2 multiplied by 3 is nothing but 3 multiplied by 2, है ना? उसके क्या फर्क पड़ने वाला है, वेदर यू आर मल्टीप्लाइंग 2 पहले लिखोगे या फिर 3 बाद में लिखोगे, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे ये मीनिंग हो गया इसका. Same thing is also applicable whenever you go for extension quantifier also. Getting? So reversion of this is also possible. That is E of x of E of y. This P of x is nothing but E of y into E of x into P of x. मतलब यहाँ पे भी ये applicable है दोनों जगह, ठीक है? Because ultimately what, any value of x मतलब क्या हो गया, मैंने quantify कर दिया कि एक ही वैल्यू मुझे लेना है. For example 3, and any value of y, it is for example 2. अगर मैंने 3 इंटू 2 किया तो 6 वैल्यू आएगी, उसका रिवर्स करो, 2 इंटू 3 करो, ऑटोमेटिकली आई विल बी गेटिंग द सेम आंसर. तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंशन और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स. सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस. स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल डज नॉट चेंज द मीनिंग. इसका मतलब है समवन कैन राइट डाउन लाइक दिस. मतलब अगर मैंने क्या किया अभी, पहले तो मैं बताता था कि ऑल यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल ये अलग अलग लिखते थे. यूनिवर्सल का मतलब सभी चीजें इंक्लूड करना, एक्सटेंशियल का मतलब सम पार्ट यू हैव टू इंक्लूड. लेकिन मैंने इन दोनों को भी अभी कंबाइन कर दिया. अंडरस्टैंड? सम ऑल ऑफ सम ऑफ ऐसे करके मैंने क्लब कर दिया. नाउ अंडरस्टैंड, आई एम गेटिंग लिटिल बिट अहेड. ऑल ऑफ सम ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है मैंने, ऑल, ये उल्टा है मतलब a of x एंड ये सम पार्ट ऑफ इट. इफ यू राइट लाइक xy, और इफ आई राइट E of y, that is some part of all of x like E of y, क्या फर्क पड़ने वाला है? Because अगर मैं बोलता हूँ x मतलब बहुत लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं वो y को लाइक करते हैं, लाइक स्मॉल क्वांटिटी y, और a small y is being liked by all the people, all the 10 people, वो तो सेम ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So switching the order of universal and extension doesn't change the meaning. इसका ये ठीक है? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर. यहाँ पे कोई वेदर इट इज ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही है चीजें, थोड़ा बहुत आपके लॉजिक आ रहा है? यस, हेलो, आई थिंक आई एम टेलिंग टू द ग्रासरूट लेवल आल्सो. वेदर माय वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर? एनी स्टूडेंट कैन रिप्लाई प्लीज. यस सर, क्लियर. ओके, आपको समझ में आ रही है चीजें? मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद एवरीथिंग, एवरीवन. सर लिटिल. हाँ, अब समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है? अगर क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताओ. बस समझ में आ रहा है तो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. एवरीथिंग यू आर गेटिंग, एटलीस्ट यू आर कनेक्टेड विथ मी. यस सर. गुड गुड गुड, दैट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉट एवर 100% आई एम टेलिंग टू यू, डजंट मीन दैट आपको पूरा का पूरा आना चाहिए 100 का 100%. आई एम टॉकिंग, अगर आपको 70% या फिर 60% भी अगर आ जाता है, इट्स ओके, बिकॉज दिस आर ऑल न्यू थिंग्स एंड वी आर मेकिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस. अगर इसमें से आपको 60 या 50% आ गया, 50% ऑटोमेटिकली यू कैन डेवलप योरसेल्फ. बिकॉज सबका दिमाग अलग अलग चलता है रिगार्डिंग द लॉजिक करना या फिर उसका प्रोग्रामिंग बनाना, ये सबका अलग अलग चीजें होता है. फिल्म बनाना, अलग अलग डायरेक्टर्स की थिंकिंग अलग अलग होती है. अंडरस्टैंड? फाइनली वो तो फिल्म ही बनाते हैं, लेकिन अलग अलग थिंकिंग वाले लोग अलग अलग फिल्म बनाते हैं, अलग अलग फिल्म अलग अलग हिट हो जाती है. यू कैन से
some films are been hit, some films are flop. क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग डिपेंडिंग अपॉन यूर थिंकिंग हाउ टू डिपेंड, आपको लॉजिक कैसे लगाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ एक्स इंटू निगेशिएशन ऑफ वाई, यहाँ पे जो दिया है इज इक्विवेलेंट टू निगेशिएशन ऑफ ई एक्स इंटू पी एक्स। मतलब अगर मैंने रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा ये चीजें, वी कैन रिलेट सम स्टेटमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एज वेल एज एक्सटेंशियल डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपने डिजिटल जो होता है, मतलब 1+0 वाला जो लॉजिक होता है ना, वहां पे आपने देखा होगा, है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए ओनली, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी ओनली, ऐसे करके आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो उसका वही मीनिंग है यहाँ पे। हमने सिर्फ क्या किया चेंज यहाँ पे, ओनली इंस्टेड ऑफ ए एंड बी वी हैव रिटन दिस ऑल एंड सम पार्ट, ऐसे करके हमने उसको दिया है। गेटिंग? So these are the things which are written from my side, which is there on your screen. So universal quantification, यहाँ पे p of x, okay? So essential यहाँ पे दिया है. So I was talking about another thing मुझे जो आपको बताना है. Translating English to FOL now, ये इसके ऊपर आता है. The second part. लॉजिक तो आपका क्लियर हो गया, मैंने एक्सटेंशियल एज वेल एज यूनिवर्सल के बारे में आपको बता दिया. नाउ हाउ टू ट्रांसलेट अ नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक FOL, ये आपको दिखाना है. सो एवरी गार्डनर लाइक्स द सन, अगर ये स्टेटमेंट है, या फिर यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, है ना. मतलब यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम और यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, द मीनिंग इज डिफरेंट. गेटिंग? ये मतलब आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन द मीनिंग इज डिफरेंट. एज वी आर टॉकिंग अबाउट सम पीपल यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ पे ऑल पीपल लिखा है, इसका कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे कि ऑल मशरूम्स, ऑल पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस, नो पर्पल मशरूम इज अ पॉइजनस. ये अलग है. ऑल पर्पल मतलब जो पर्पल वाले मशरूम्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, एंड नो पर्पल मशरूम इज पॉइजनस, ऐसे करके आ गया. So there are exactly 2 पर्पल मशरूम्स यहाँ पे दिया है. तो आगे चले जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ दे आर रिटन. पहले मैंने बोला कि द स्टेटमेंट इज रिटन, इंग्लिश में लिखा है ये सभी चीजें. अभी उसको हम क्या करेंगे, FOL में कन्वर्ट करेंगे. FOL मतलब बाय यूजिंग द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर या फिर कनेक्टिंग. तो एवरी गार्डनर लाइक्स द सन, इसका मतलब आप देख सकते हो क्या लिखा है उसमें. देखो एवरी गार्डनर मतलब यहाँ पे देख सकते हो एवरी गार्डनर लाइक्स सन, ऐसे करके उन्होंने FOL में करा. नाउ दिस स्टेटमेंट कैन बी गिवन टू कंप्यूटर. समझ में आ रहा है? जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलता हूँ, यू कैन फूल समवन सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम. इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, FOL में कैसे लिखेंगे, यू कैन सी यू कैन फूल सम. सम बोला है मतलब क्या हो जाएगा, E of x यूज करना पड़ेगा. हाँ, ऑफ द पीपल एंड ऑल द टाइम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम टाइम करके इसमें ऑल द फूल करके ऐसा आ जाएगा. जैसे कि नेक्स्ट, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम. ऑल द पीपल आ गया मतलब यूनिवर्सल आ गया, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ऑफ सम पर्सन आ गया, टाइम ऐसे करके आ गया. अंडरस्टैंड? मतलब अगर आपको ये कन्वर्जन आ गया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में या फिर एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस, दे विल बी डायरेक्टली गिविंग यू द इंग्लिश और आपको उसको FOL में कन्वर्ट करना है. एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि अगर क्या है, अगर आपको कनेक्टिव्स पता है, आपको अगर ये क्वांटिफिकेशन पता है, तो इजीली यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ FOL टू इंग्लिश और इंग्लिश टू FOL. दिस इज व्हाट वी आर कन्वर्टिंग आवर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इनटू द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है. अंडरस्टैंड? जो लिखा है FOL, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंग्लिश कंप्यूटर, बिकॉज अल्टीमेटली कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन वंस एंड जीरोज ओनली. समझ में आ रहा है? जो भी वो कोडिंग करता है वो वंस एंड जीरोज नहीं होता है, राइट. बट दिस इज बीन नाउ टर्म्स ऑफ, हम क्या लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, एंड दैट फंक्शंस इज बीन डिफाइंड बाय सम वैल्यूज ऑफ वंस एंड जीरोज, एंड दैट इज नाउ बीन अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर और एनी ऑफ द सेंसेस. इसका मतलब ये होगा. ठीक है, इक्विवेलेंट आ गया. हाँ, मशरूम का एक एग्जांपल मैंने बताया, नो पर्पल वाला ये एग्जांपल है. यू कैन रीड दिस. हाँ, ये मैंने आपका क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव रिटन द आंसर, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी. अभी मोंटी पाइथन एंड द आर्ट ऑफ फैलेसी ऐसे करके एक
you can say one conversation is there between the one, you can say, king author and the other people in his court. King author आपने नाम सुना होगा, king author. Author was a big king where he was, आपको पता है कौन से देश का है ये author king, या फिर it is a fictitious story? आपको क्या लगता है, ऑथर ये रियल में था या फिर ये फिक्शियस है, मतलब एक जस्ट स्टोरी टेलिंग के लिए हो गया? आर्थर नाम सुना है आपने, किंग किंग आर्थर? आपको स्टोरीज भी होंगी इंग्लिश में, आप जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते होंगे, मतलब दो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो किंग ऑथर के बहुत सारे, अगर आपको याद आता हो, इसलिए मैं आई एम रिमाइंडिंग, किंग ऑथर के बहुत सारे इंग्लिश में पैसेजेस होते थे, है ना? उस पैसेज का एक पार्ट आपको आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक? तो इसमें क्या क्या कौन कौन इंक्लूडेड है सर? ये बेडिवर द वाइस करके है, मास्टर ऑफ और लॉजिक, मतलब ये एक आदमी है, दूसरा एक किंग ऑथर है, एक विलेजर वन है, विलेजर टू है, विलेजर थ्री, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ योर स्कॉन्डल्स, यहाँ पे जो भी अदर देन दीज थ्री विलेजेस, मतलब इन तीनों या फिर ये 4-5 लोगों में बातचीत चल रही है, एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू FOL नाउडेज, है ना? ये अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट आपके सामने है, स्क्रिप्ट को हमें क्या करना है, FOL में कन्वर्ट करना है, ठीक? ये बनाया है, मतलब ये आपको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, तो यहाँ पे दिया है, देखो, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ मॉन्टी पाइथन बाय द वे ऑफ रसेल एंड नॉर्विक। रसेल एंड नॉर्विक ने ये लिखा था, मतलब उनका एक बुक है, उसमें ये लिखा है सब कुछ चीजें, वहां से लिया है ये स्मॉल पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट विलेजर बोलता है वी हैव फाउंड अ विच मे बी बर्न बर्नर। विच का मतलब क्या होता है आपको पता है? अ विच बर्न हर, विच मतलब जो जादू टोना जो करते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट विलेजर बोलता है वी हैव फाउंड अ विच मे बी बर्न हर, मतलब वो बोलते हैं उनको मार दिया जाए, या फिर सॉरी, मार दिया का मतलब व्हेन यू कैन हैव द, उसको जलाया जाए, तो ऑल जो जो होते हैं वो बोलते हैं अ विच, ओके बर्न हर, मतलब उसको बर्न कर दो। बेडीवर बोलते हैं व्हाई डू यू थिंक शी इज अ विच, मतलब आपको कैसे लग रहा है कि वो विच ही है, मतलब शी इज अ जादू, मतलब उसको बोलते हैं ना विच, जिसके पास छड़ी होती है, एंड शी इज टू डू मतलब मैजिक एंड एनीथिंग शी कैन डू, ऐसे करके। तो वो बोलता है कि आपको कैसे पता है कि ये विच है? सेकंड विलेजर बोलता है शी टर्न मी इनटू अ नेट, मतलब अ नेट आफ्टर लुकिंग एट हिमसेल्फ फॉर सम टाइम आई गॉट बेटर, बर्न हर एनीवे। तो बी बोलता है क्वाइट क्वाइट देयर आर सम वेज ऑफ टेलिंग वेदर शी इज अ विच, मतलब ये ठीक नहीं है, मुझे उसने ऐसा किया वैसा किया, वो बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ये विच है ना? लेकिन बट वो बोलता है नहीं, बाकी के बोलते हैं अगेन बर्न देम। ये स्टोरी है, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। बी व्हाट डू यू बर्न एंड व्हाट डू यू बर्न अपार्ट फ्रॉम विचेस, मतलब अगर आपको बर्न किया जाए, मतलब आपको जलाना चाहे, तो आप विचेस के अलावा क्या बर्न करना चाहोगे? तो विलेजर्स बोलते हैं वुड, मतलब हम लकड़ी भी जला सकते हैं। तो व्हाई डू विचेस बर्न, मतलब तो आई सी ऑफ कोर्स ऐसे करके दिया है, एंड सम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर, so what, how can we tell if she is made up of wood? अगर क्या बोलता है, अगर आपको लगता है, वो बोलता है कि अगर विचेस को अगर हमने जला दिया, तो अगर विचेस जल सकती हैं, अगर वुड जलता है तो विचेस भी जलेगी, अगर वुड नहीं जल रहा है तो ऑटोमेटिकली विच भी नहीं जलेगी, ऐसा इसका मीनिंग है। तो दैट्स ऑल। एंड उसका आगे का मीनिंग उन्होंने बताया कि इफ विचेस कैन एबल टू वो फ्लोट, so and what wood can also float, so what other things can also float, ऐसे करके आगे दिया मैंने, I will directly go to the end, है ना? किंग ऑथर बोलता है कि अरे नहीं, किंग ऑथर क्या बोलता है, अरे डक भी तो फ्लो हो सकता है ना, wood can float, so duck also can float, yes, so exactly logically it is right। इसका यहाँ के मीनिंग मुझे क्या बताना था, ये लॉजिकली है ना, ये स्टेटमेंट मुझे बताना, ये लॉजिकली, if wood can able to burn and which is able to burn, then, तो हमने क्या आगे लॉजिक क्या बोला है कि अगर विच को बर्न कर सकते हैं तो वुड को भी बर्न कर सकते हैं, अगर विच को फ्लोट कर सकते हैं तो वुड को भी फ्लोट कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रू है, देन तो किंग ऑथर इन्होंने और एक आइडिया और एक बता दिया कि अरे ये तो डक के साथ भी पॉसिबल है, बिकॉज डक कैन ऑल्सो बी बर्न, यस ट्रू, एंड डक कैन ऑल्सो फ्लोट, यस राइट, इट कैन ऑल्सो बी फ्लोट, राइट, बट the thing is it is different than whatever wood and wood, मतलब उसमें तीसरा और एक लॉजिक उन्होंने ऐड कर दिया, दैट इज द मीनिंग, so that is just a type।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टोरी बताई आपको मैंने छोटी सी, है ना। मतलब पहले विच, उसको बर्न करो, वुड का लॉजिक बताया, विच कैन बी बर्न, उसके बाद वुड के बारे में बताया, और तीसरा बताया डक कैन ऑल्सो। तो अभी ये सेम चीज हम इसमें लिखेंगे, FOL। तो स्टोरी एटलीस्ट यू हैव गेट लिटिल बिट आइडिया आपके दिमाग में आ गई। एनी स्टूडेंट कैन रिप्लाई, आपको एटलीस्ट समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई कैन टेल इन टर्म्स ऑफ FOL। Yes, students. Anyone can reply? Yes. Hello. Whether my voice is clear? Yes. Hello. Uh, yes. Whether the screen is visible or not? Okay. Good. Yes, sir. Clear, sir. Okay. Okay. क्या है, मुझे बीच बीच में आप थोड़ा सा बोलते जाओ, so that I can understand, because I cannot directly see whether you are there physically. ठीक है, physically अलग बात Yes, होती है। sir. ओके, ठीक है। तो कैसा है, वो मैंने आपको स्टोरी बताई, तो स्टोरी जैसा ही इसमें अभी लॉजिक यूज करेंगे। ये उल्टा है, मतलब क्या हो गया, इसको यूनिवर्सल ऑफ विचेस, मतलब जो सभी विचेस है, इसका मतलब हो गया कैंट बी बर्न, इसका ये मतलब हो गया, है ना। इसको हमने लिखेंगे यूनिवर्सल ऑफ वुड, मतलब सभी जो लकड़ियां हैं उसको हम बर्न कर सकते हैं, इसका ये मतलब हो गया पहले वाला स्टेटमेंट। दूसरे वाला, सभी लकड़ियां हम बर्न कर सकते हैं, सभी विचेस को हम बर्न कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सभी विचेस वुड ही है, दैट इज द मीनिंग नो। अगर लकड़ियां, मतलब डोंट गो इन द रियल सेंस, गेटिंग विच, ये अलग बात है, इट इज अ पर्सन हु डज द मैजिक, एंड वुड इज अनदर डिफरेंट थिंग। बट अगर विच को हम बर्न कर सकते हैं तो वुड को भी हम बर्न कर सकते हैं, इसका मतलब विच इज वुड, इसका मीनिंग ये हो गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये इसका रिटन लाइक दिस। So all witches are nothing but wood, इसका ये मीनिंग हो गया। तो if P then Q, then R is then Q, इसका मतलब होता है P is Q है तो R भी Q है, इसका मतलब P R ही है, इसका ये मतलब ये हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे विच को बर्न से इंक्लूड किया, वुड को बर्न से इंक्लूड किया, तो बर्न क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, लॉजिक किस साइड से बर्न को कैंसिल कर देंगे एंड विच को एंड वुड को ऐड कर देंगे। अगर आप फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर में अगर यू आर गिविंग द एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे आप, या फिर आपने पैसेजेस एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड। So how to able to, if I write man is a dog is a bar, ऐसे करके अगर हमने लिखा, आखिरी वाला और लास्ट वाला स्टेटमेंट सीधा सीधा इक्वल होता है, दैट इज द गिवन हियर फॉर द लॉजिक। जैसे कि ऑल वुड, यहाँ पे वुड ऑफ एक्स कैन बी बिल्ड, यहाँ पे मैंने बोला सेकंड कंडीशन, वुड से हम क्या बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, यस। तो कैन बिल्ड ब्रिज बाय यूजिंग वुड, मतलब वही हो गया ना, इफ यू आर एबल टू बी बिल्ड अ ब्रिज बाय यूजिंग वुड, then it can be same thing, bridge can be also done by wood, मतलब सेम स्टेटमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर इनटू सम वैल्यू विल बी इक्वल टू क्वांटिफायर इनटू यूनिवर्सल, मतलब उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिक, तो यहाँ पे भी वही दिखाया है। सिमिलरली आगे जाते हैं थर्ड पार्ट में, वो स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया है, ऑल वुड्स, मतलब सभी लकड़ियां फ्लोट कर सकती हैं, इसका ये मतलब हो गया। सो ऑल डक्स, है ना, डक्स कैन फ्लोट, यस बराबर है। तो अगर दोनों भी फ्लोट करते हैं, वुड भी फ्लोट करता है और डक भी फ्लोट करता है, मतलब वुड एंड फ्लोट भी, वुड एज वेल एज डक बोथ आर इक्वल ओनली, इसका मतलब होता है ऑल डक वेट्स आर नथिंग बट वुड, ऐसा इसका मीनिंग होता है। P is Q, R is Q, then automatically R is equal to P। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड अंडरस्टैंड। वैसे करके और एक स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, जैसे कि ऑल लाइट, मतलब जो हल्की चीजें होती है वो वुड होती है, या फिर लाइट ऑफ W, तो कैन वी राइट दैट इफ वुड इज लाइट देन अदर थिंग वी कैन राइट वुड कैन बी ऑल्सो लाइट, मतलब लाइट अगर वुड है तो वुड इज ऑल्सो लाइट, रिवर्स ऑर्डर वी कैन राइट ऑन द। सिमिलरली विचेस का W मैंने यहाँ पे बोल दिया, सो वुड ऑफ W यहाँ पे ऐसे करके ये विच ऑफ Z करके, मतलब वी शुड अंडरस्टैंड वी आर एबल टू रिलेट थ्री वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दूसरे को रिलेट करता है, दूसरा वेरिएबल अगेन वही वेरिएबल को रिलेट करता है, तो पहले वाला और दूसरा वेरिएबल दे कैन बी रिलेटेड डायरेक्टली, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम ऑल दिस थिंग यू शुड हैव अंडरस्टैंड कि मैंने KB दैट इज नॉलेज बेस से मैंने FOL बना के दिखाया, बाय यूजिंग अवर नॉलेज, एक पैराग्राफ लिया, उससे हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बना के दिखाया। जैसे कि
यहाँ पे बोल सकते हो प्रेडिक्ट्स पेरेंट्स चाइल्ड्स फादर, ये हम एक्स वाई जेड में लिख सकते हैं। स्पाउस का लिख सकते हैं एंसेस्टर्स मेल्स रिलेटिव्स फैक्ट, ये किसी भी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं एफओएल लॉजिक, ठीक है। जैसे रूल्स फॉर जियोग्राफिकल रिलेशंस, मतलब क्या होता है इन बिटवीन टू पीपल व्हाट कैन बी द रिलेशन, जैसे ऑल पेरेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर आर चिल्ड्रन, हाँ मतलब उनके चिल्ड्रन वाई जेड वाई एक्स होंगे, या फिर ये लोग ये चिल्ड्रन है दे आर द चाइल्ड ऑफ और यू कैन से ऑफ दीज पेरेंट्स, मतलब इसमें इक्विवेलेंट साइन दिया है। मतलब हम ऐसे सीधे सीधे बोल सकते हैं ये पेरेंट्स हैं, 10 पेरेंट्स हैं, उनके ये चाइल्ड है, आगे वाले जो आप बैठे हुए हैं वो चाइल्ड है, और आगे उल्टा रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हैं ये लड़के हैं या फिर ये चिल्ड्रन है, दे आर देयर पेरेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ, ऐसे कर। Similarly, you can write terms in terms of father, in terms of daughter, in terms of husband, spouse, parent, मतलब किसी भी चीज के आप रिलेशन लगा सकते हैं, इसका ये मीनिंग हो गया। I will share this with you. You can understand what I am trying to tell. मतलब you can equate this thing between the relations. Very straightforward. I think FOL वगैरह मैंने अभी ये बहुत सारी चीजें आपको सीधे सीधे बताई। You can write down this. Axioms, definitions, theorems के बारे में भी आपको मैंने बताया चीजें, जैसे ये भी चीजें मैंने बताई। मॉडल बेस्ड एजेंट है ना, ये भी आपके साथ शेयर किया मैंने कि नॉलेज क्या होता है और नॉलेज बेस्ड केबी क्या होता है। So that is again been little bit in depth they have written in the slide, so that is not much required. because अगर आपको समझ में आ गया ये चीजें क्या होती है, जैसे कि अभी अगर मैं कोडिंग के बारे में आता हूँ, पहले मैं आपको एक थियोरेटिकल बोला, उसके बाद में एफओएल में कन्वर्ट किया, एफओएल के बाद हमने कुछ कनेक्टिव्स देखे। नाउ यू डायरेक्टली गो फॉर कोडिंग, नाउ कोडिंग करना है मुझे। यहाँ पे प्रिंट कलर स्नो ऐसे अगर मुझे लिखना है तो आई कैन राइट एज इट इज व्हाइट, मतलब स्नो व्हाइट है, इसको लिखने के लिए क्या बोल सकते हो हम, प्रिंट कलर स्नो, मतलब स्नो का कलर बताओ। ऐसे करके प्रिंट मैंने ऑप्शन किसको दे दिया, कंप्यूटर को दे दिया, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर शुड गिव मी द आंसर इट इज व्हाइट, ये मीनिंग उसका आउटपुट हो गया। वैसे ही प्रिंट कलर ग्रास अगर मैंने इनपुट दे दिया किसी को लैपटॉप या कंप्यूटर को, इट शुड राइट इट एज इट्स ग्रीन कलर। प्रिंट कलर स्काई इट शुड राइट इट इज ब्लू। प्रिंट कलर एक्स इट इज शुड राइट बीच में, ऐसे करके उसका आंसर आना चाहिए। मतलब इट इज प्री डिफाइंड, इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन योर लैपटॉप और इन योर कंप्यूटर इन द मेमोरी। अगर मैं यही चीज नॉलेज बेस्ड अल्टरनेटिव्स के लिए बोलता हूँ, ये है प्रोसीजरल स्टाइल। मतलब प्रोसीजर मतलब नॉर्मल स्टाइल, जो आराम से सभी जो लोग होते हैं नॉर्मल थिंकर्स, दे राइट लाइक दिस। स्नो का कलर बताओ तो आंसर आना चाहिए व्हाइट, ग्रास का कलर बताओ तो इट शुड व्हाइट, ये तो नॉर्मल हो गया। बट एक्चुअली व्हेन यू गो फॉर नॉलेज बेस, अगर दिमाग के बारे में बात करें तो यू शुड नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ स्नो ग्रास स्काई, ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे, वेरिएबल्स का यूज करना है यहाँ पे। सो प्रिंट कलर ऑफ एक्स अगर मैंने ऐसे बोल दिया, कलर ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब हो गया राइट इट इज राइट वाई इट इज, ऐसे करके आना चाहिए। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्नो एंड व्हाइट, मैं क्या लिखूंगा, कलर स्नो कॉमा व्हाइट, ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉलेज बेस्ड। मतलब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, गेटिंग। इंस्टेड ऑफ ग्रास एंड कलर, मैंने ग्रास का कलर क्या होता है ग्रीन, कलर का मतलब स्काई एंड ब्लू। मतलब अगर मैं क्या देता हूँ, आई विल गिव द इनपुट्स स्नो एज एक्स, व्हाइट एज द व्हाइट, या फिर एक्स एज ग्रास एंड ग्रीन एज व्हाइट, या फिर स्काई एज एक्स एंड येलो एज व्हाइट। मतलब by using only two variables, if I directly give the input, if I give snow, automatically it will give the output as white. If I give the grass, automatically it will give the green. या फिर if I give sky, it will tell you as yellow. इसका मतलब सीधा हो गया, by reducing the number of steps, we are reducing the computing time of the computer. उसका जो टाइम होता है कैलकुलेट करने का वो कम हो जाएगा, and it will give the correct answer, and it is very easy to understand also. ठीक है, आपको ये याद तक तो मैंने आपको तो यही है। आगे बहुत सारी चीजें, सिमेंटिक्स, वैलिडिटी ऑफ इंटरफेरेंस, मैंने ये बताया आपको सभी चीजें, मॉडल्स कैसे किए जाते हैं, एवरीथिंग राइट। प्रूफ के बारे में भी बताया मैंने, साउंडनेस एंड इट इज बीन रिपीटेड अगेन, थोड़ा डिटेल में और लिखा है, ठीक है। मैंने आपको कनेक्टिव्स बताए, ऑल दिस थिंग, एआई डीप ब्लू पैटर्न। ये अभी और एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले वाला एक पैराग्राफ बताया, वैसे ही इसमें भी एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एफओएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है फिजिक्स का, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, डॉलर का एक जेपॉर्डी गेम है, तो उसमें कैसे खेलना है, क्या खेलना है, अगर आप ये आराम से बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं
in terms of how to convert into FOL and everything, you can get this answer. Semantic waves. So that can be the points which I wanted to discuss today, students, because it is now 4:44 almost. So we will be just summing up what all things we have done today. So then we can end up our session, today's session. So many things are there. Just sum up कर लेते हैं 1-2 minutes में, so you will be a little bit free. Whatever I wanted to tell the guy regarding the thing. I can just बोले थे. ये download होता है. Download address. Yes, ठीक है. Very good. ठीक है. So in the today's lecture, we have talked about starting with the first order logic, objects, properties, and everything. Second, we have talked about the FOL, how to do by using the quantifiers. एक मैंने नया ऐड किया quantifier, that is universal and essential. ये चीज ऐड किया. उसके बारे में आगे बताया मैंने ऑटोमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट जिनमें से एक ही कनेक्टर्स हैं उसको एटॉमिक सेंटेंस बोलते हैं, और जिनमें बहुत सारे कनेक्टर्स एक साथ लगाए जाए उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. उसमें FOL में हमने कनेक्टिव्स एज वेल एज सेंटेंसेस देखे. ठीक है. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू कनेक्ट, मतलब ऑर्डर अगर चेंज भी कर दिया तो यूनिवर्सल और एक्सटेंशियल में दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता व्हेनेवर यू डू द थिंग्स, है ना. इसके बारे में मैंने एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर किए, है ना. हाउ टू ट्रांसलेट द इक्वेशन और योर नॉर्मल इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ FOL. ये आपके स्क्रीन के ऊपर है. यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. एवरी गार्डनर लाइक्स द सन, इसको कैसे लिखा जाए इन टर्म्स ऑफ FOL, यू विल बी गेटिंग द आंसर. राइट. और एक मैंने एक स्टोरी बताई आपको रिगार्डिंग किंग ऑथर, और उसी को हमने 4 पार्ट्स में अलग अलग करके डिवाइड किया और उसको हमने FOL में लिखने की कोशिश की. राइटिंग सभी. राइटिंग FON, या फिर वुड को ब्रिज बोला, ब्रिज को वुड बोला, लाइक दैट. ऐसे करके मैंने आपको चीजें बताई. ठीक है. एंड रूल्स रिलेटेड टू जेनेटिकल रिलेशंस, मतलब फादर चाइल्ड का है, चाइल्ड का फादर के साथ रिलेशन है. वैसे हम बहुत सारे रिलेशंस एक दूसरे के साथ दिखा सकते हैं बाय यूजिंग कनेक्टर्स और बाय यूजिंग यूनिवर्सल दैट वी कैन अंडरस्टैंड. एग्जाम्स वगैरह है, मॉडल्स वगैरह, ये मैंने आपको सभी चीजें बताई. तो बहुत सारी चीजें बताई ऑन एन नटशेल रिगार्डिंग द नॉलेज बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ, और वी कैन देन एंड अप आवर सेशन. कोई डाउट है तो पूछो, otherwise we can end up our today's session. Any question if you are having? Any student? Abhinav, Adarsh, Aditya, Anupam, Arman, Ritik, Isha, any student? या फिर we can end up our today's session. आपको समझ में आ गया चीज़? You can give the feedback also. क्या समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, ये समझ में आया, ये ज़्यादा समझ में आया, या फिर something you have understood, you can tell. No problem. Rohit, Sahil, anyone can talk, please. Yes. Isha, whether my voice is clear or not, I don't think. Arman, so I think everyone have understood everything. So can we end up our today's session? Yes, student, please reply. Yes, anyone can reply that. Can we end up